Okay, fine. स्क्रीन शेयर हुआ? Yes, sir. Okay, Pratik. Okay, Komal. Yes. Please, there are few initiatives to the rural population, for the rural population on इसमें क्या क्या है, ठीक है, इसको पढ़िए. The startup revolution and all. The Indian economy, sir. हाँ, मतलब today's topic we are going to deal with the five as per the stream and the literature collected, 5 innovative startups that are redefining rural India. Redefining मतलब rural India बहुत बड़ा ये है, एक सेंटर है ऑफ रेवेन्यू, अनटैप्ड मार्केट. ठीक है, प्लीज शुरू कीजिए इसको, कोमल. The Indian economy is on the cusp of a startup revolution, what with thousands of promising startups emerging every year. A recent research suggests that Indian startup $4 funding in 2019 alone. In our quest for finding startups that are doing something different, we stumble upon these 5 amazing startups that are on mission to transform rural India for a good. For good, take a look. Hush Power System (SPS), based out of Bihar, SPS Hush farms to हस पावर सिस्टम, एचपीएस, हस पावर सिस्टम. ओके फाइन, ठीक है. Hush from farms to deploy mini power stations and distribute city-wide microgrids. In just 4 years, SPS has put in 84 mini power plants, which provide electricity to over 200,000 households across 300 villages, while also creating employment opportunity for 50 people from the state of Bihar. A single plant is service to around 400 families, which helps save roughly 42,000 liters of fuels and 18,000 liters of diesel each year, considerably reducing indoor pollution and improving health conditions in rural areas. ठीक है, तो प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक. मेरी आवाज आ रही है? हेलो प्रतीक, अभिराज, अभिराज. चैलेंज. प्रतीक है तो सत्यम. Yes, हेलो सत्यम. सत्यम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो. ठीक है, ओके. हेलो. जोशी. हाँ प्रतीक. हेलो सर. प्रतीक. ये हस पावर सिस्टम जो है एचपीएस, सर. व्हाट इज दिस एचपीएस? ठीक है, इसका पूरा डिटेल पता करके आओ. ठीक है, मतलब आई वांट यू प्रेजेंट दिस. व्हाट इज दिस एचपीएस ऑल अबाउट, हाउ इट स्टार्टेड and what are all the benefits, especially in contributing the development in the rural areas, how it is acting as a catalyst, HPS. ठीक है, Komal, please proceed. Yes, sir. The second Chikitsak. In 2014, Milind Naik started Chikitsak, a Nayak, health Nayak, tech- Nayak. Milind Naik started Chikitsak, a health tech startup. It focuses on bringing
healthcare facility to the rural population who do not have privilege of affordable primary health care. चिकित्सक blends a mobile and lucid medical screening kits with each that can be operated through low-skilled healthcare workers. Hmm. चिकित्सक mainly focus on non-communicable disease and provides cost-effective screening in the comfort of a parent's home Patients, and at patients. affordable patient's home and at affordable price. They Hmm. also provide 3 days training courses to people in rural areas on the completion of which they provide them job opportunities. ठीक है, it's all about establishing health. This is a startup. It is all about establishing health. मतलब इसमें ना जैसे चिकित्सक है और फिर आपका ये HPS है. So these are all the startups we are talking about. Amazing startups. जो फिर they are acting as a catalyst. ठीक है, वो तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. अगर वो पूरा मॉडल डेवलप कर जाता है तो आई थिंक कि वो वैक्सीनेशन में भी ड्राइव में भी बहुत हेल्प हो सकता है. और उसमें अभी जो एक नया प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि पीपल आर नॉट डेवलपिंग ट्रस्ट इन द वैक्सीन. ठीक है, तो वो हर बात होता है जब भी कोई नया वैक्सीन आता है तो किसी का ट्रस्ट बनता है, किसी का नहीं बनता है. नाउ द थिंग इज दैट इट्स ऑल अबाउट टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट दैट इट इज गुड एंड वी शुड टेक इट. तो उसमें ये स्टार्टअप बहुत काम आ सकता है. ठीक है, आगे पढ़िए. जीवन अंश. Jeev Ans is a startup that practice organic agriculture and fair trade. They are committed towards helping Mother Nature by promoting organic farming and consequently reducing our collective carbon footprint. As supplies of locally produced agri committed by Procured. procured agri committees by organic farmer societies commodities by organic farmer societies of Northeast India. They also advocate fair trade and empower the farmers with handsome commissions, which ultimately motivates them to increase their produce and boost the agriculture ecosystem. ठीक है, इस पे कुछ बात हम लोग बोल सकते हैं. तोशी, especially with reference to Yes, sir. अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रतीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी नाउ इट हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन. तो खैर, Yes, sir. ऑर्गेनिक तो पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हम लोग कर रहे थे. तो अब उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि वापस वी हैव टू एम्फसाइज ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो बीच में व्हाट वेंट रॉन्ग? सर केमिकल से डैमेज होने लगा था और फर्टिलाइजेशन उतना सही से हो नहीं रहा था. मतलब यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत प्रमोट हो गया. यस सर. में है कि फिर है कि उसमें एक हम ऐसा एडवाइस करेंगे कि थोड़ा सा वंदना रिपोर्ट भी आप पढ़िए. एक लेडी हैं, उनका नाम है वंदना शिवा. वो उन्होंने लैंड ग्रैबिंग पे, पहले भी हमने बोला होगा शायद, कि लैंड ग्रैबिंग पे उनका रिपोर्ट है कि लैंड ग्रैबिंग कैसे हुआ है. मतलब विद द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज्ड एज अ टूल इन लैंड ग्रैबिंग. इसको थोड़ा रिपोर्ट को पढ़िएगा उनका. वंदना शिवा नाम लिख लीजिए. वंदना शिवा, उनका कई बार सेमिनार हुआ है, तो लेक्चर भी उन्होंने दिया है यहाँ एंसिना इंस्टीट्यूट में. शी इज अ वेरी लर्नेड लेडी. मतलब केमिकल फर्टिलाइजर है कुछ नहीं, उसका इस्तेमाल करवाते गए. जो डिस्ट्रीब्यूटर बना वो केमिकल फर्टिलाइजर बेचा उसने. उसके बाद बहुत दिन के बाद वो जमीन बंजर हो गई. और उसके बाद वो किसान क्या करेगा, तो नाउ किसान सोल्ड द जमीन टू द वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अब कि आप खरीद लीजिए इसको, तो बहुत ही कम दाम में ये सब. तो उस तरह से लैंड ग्रैबिंग हुआ है. तो खैर, मतलब इट्स लैंड ग्रैबिंग इज नॉट अबाउट कि कोई बाहुबली आकर के लैंड ग्रैब करा. नो, इट्स वेरी द सैड पार्ट. खैर,
So that is why now, and consequently, the chemicals have damaged so much to our agricultural land, the productive land, that now we are emphasizing on organic farming. And also the produce is not good with respect to the chemical fertilizer and all. ठीक है, तो इसका पूरा ना प्रतीक, आपके पास दो जिम्मेदारी हुई, एक तो एचपीएस के बारे में पता करना आपको, यस सर। एचपीएस, और वंदना शिवा रिपोर्ट, मैडम वंदना शिवा का जो है। ओके सर। ठीक है, ओके कोमल, नाउ दिस व्हाट इज गाथा? So fourth one, Gatha is a Ahmedabad-based startup with a very novel causes of bridging the gap between artisans from rural part of the nation to a global audience, appreciative of their work and helping them earn their livelihood. One of their objective is to put forth and help a faceless, unsung artisan to present his or her exemplary work. exemplary work. This currently operate through an online website and sell artifacts and other products ranging from home decor to sarees and jewelry. Ranging अच्छा, home. ठीक है, तो ये गाथा क्या हुआ, इसके बारे में कोमल बताइए आप। गाथा एक्चुअली हुआ क्या, ये स्टार्टअप क्या है? ये बहुत बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, ये बहुत शानदार स्टार्टअप है। ये आपको कुछ नहीं करना है, पैसा ऑलरेडी है, सिर्फ आपको एक्सपोजर दिलाना है। ये है क्या? बोलिए, तोशी आप बोल सकती हैं कुछ? सर ये प्लेटफॉर्म है जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया को साथ में कनेक्ट कर रहा है। ग्लोबल है, ग्लोबल। और इस पे सेमिनार भी हुआ था, उसमें वो उन साहब का नाम हमेशा भूल जाते हैं, मतलब वो साहब जो थे, गुप्तेश्वर पांडे जी सर, वो भी वो आए थे प्रोग्राम में, वहाँ अधिवेशन भवन में प्रोग्राम हुआ था हम लोग का, और उसमें वो गुजरात से वो साहब आए थे। उन्होंने यही बात, उनका पूरा ये एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि हाउ वी आर एक्टिंग। फिर से बोलिए। नहीं, वो तो दैट वाज वन ऑफ द एस्पेक्ट। जो भी चीज है उसको ग्लोबल प्रेजेंस दिला रहे हैं ना, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट करा दिया। यस सर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ना बाबू, वन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव इज टू पुट फोर्थ एंड हेल्प अ फेसलेस और अनसंग आर्टिशियंस। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जिनका मतलब उनको ये एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है, तो उनके काम को अपने प्लेटफॉर्म पे ला करके उनको एक बेहतर एक्सपोजर दिलाना, सो दैट उनका डिमांड क्रिएट हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हुआ ना, they can operate through an online website and sell artifacts and other products ranging from home decor to sarees to jewelry। बहुत सारी साड़ी है जो हाथ से बनती है, उसमें आपका जो ये है बिहार में ये तक्षशिला सोसाइटी है, जिस तक्षशिला सोसाइटी से ही अपना जो डीपीएस है वो गवर्न होता है। डीपीएस दानापुर में है ना? यस सर। तो वो तक्षशिला सोसाइटी से गवर्न होता है ना। तक्षशिला सोसाइटी इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, उसके बारे में भी जानिए, बहुत शानदार काम कर रहे हैं ये लोग। तो जितने भी जो टीचर्स हैं ये लोग हैं वो स्कूल के, उसमें उनको तक्षशिला वहाँ की जो गांव की जो लेडीज हैं वो हैंड वीवन साड़ी एंड ऑल, ठीक है, वही साड़ी वो लोग पहनती हैं, टीचर्स एंड ऑल। तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, एक अच्छा रेस्पेक्ट दिया गया, और उस तरह से ये हिसाब किताब है। यहाँ भी तक्षशिला सोसाइटी भी बहुत बेहतर काम कर रहा है। खैर, तो अभी भी बहुत सारी चीज है। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स को बताइए क्या होता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और बहुत पैसा है। व्हाट इज आर्टिफैक्ट्स? प्रतीक आप बताइए। मिला? तोशी आर्टिफैक्ट्स को बताइए क्या होता है? यस सर।
प्रियंका, सूरज, Sir, showing human worship. आर्टिफैक्ट्स, ठीक से देखो। हैंडमेड काइंड ऑफ। Research PH. हैंडमेड, दिखा? ये सारा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो ये सारी चीज का आपका वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया का जो आर्टिफैक्ट्स है उसका वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत डिमांड है बाबू, बहुत ज्यादा डिमांड। क्राफ्ट वगैरह। इंडियन सर- आर्टिफैक्ट्स का। हाँ बोलिए। सर हैंडी क्राफ्ट वगैरह। हैंडीक्राफ्ट है, हाँ वही सारी चीज है। तो वो अपना गांव में तो बहुत बनता है, टैलेंट बहुत है, लेकिन वो लोग उतना ज्यादा उसको बड़े लेवल पे नहीं है कि भाई उसका मार्केट नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज जो है आपका, जितने भी जो फॉरेनर्स आते हैं वो यही सब तो खरीद के ले जाता है। यही सब सारी चीज को आपके बोधगया का मार्केट देखिए, पूरा आर्टिफैक्ट से पूरा वो मार्केट सजा हुआ है। खैर चलिए, गाथा हो गया। ठीक है, तो गाथा में तो ये अहमदाबाद का हो गया। तो थोड़ा तक्षशिला सोसाइटी को भी पढ़िएगा, तक्षशिला सोसाइटी। ठीक है, रोजगार ढाबा, इसको पढ़िए। मतलब ये एक्चुअली हमने सिलेक्ट किया है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसी के बारे में पूरा प्रेजेंटेशन देना है 1 by 1। मतलब जो लोग अपना सिलेक्ट कर लीजिए, एक आदमी गाथा को चुनेगा, एक आदमी रोजगार ढाबा, एक आदमी एचपीएस, और उसके बारे में पूरा डिटेल विद रिस्पेक्ट टू डेटा की जो एसडीआई है, जो डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डेटा एंड रेवेन्यू एंड ऑल, क्या लाइफ है। एंड अगेन तोशी वो दैट वन यू नो, आशा देवी एंड विमला देवी टाइप। ठीक है, कि कितनी आशा देवी का जिंदगी इस स्टार्टअप से बदल गया। ठीक है, अब गाथा में कितने लोग बेनिफिटेड हुए हैं, तो कुछ स्टोरी चाहिए। सब मिस्टर रमेश है, सब मिस्टर अब्दुल रहमान है, जो फिर इस स्टार्टअप से उनको बहुत फायदा हुआ एंड नाउ दे आर हैप्पीली सेटल्ड। ओके, ठीक है, रोजगार ढाबा, इसको पढ़िए। This is a startup birthed in the Sihor district of Madhya Pradesh, which help provide jobs to local people and reduce migration to large cities. Rozgar Dhaba started in January 2018 and catered to over 1,000 people a month, hosting over 20 jobs, fairs and farm produce sales display. It has over 70 registered entities such as government agencies, skill center, NGOs, the district agriculture centers, Gramin centers, and small local business who provides regular job information. The dhaba itself provides employment to over 10 people with average monthly salary ranging between of Rs 8,000 to 12,000. Rural India is brimming with untapped potential, which is which if utilized, utilized, which uh, if which- utilized. which if utilized optimally could work wonders for the economy. Thanks to the aforementioned startups and many more such organization, a future when rural and urban areas treat hand in hand towards economy stability doesn't seems too far away. Stability. Stability doesn't seems too far away. ठीक है, नाउ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया आज का क्लास? ये वो स्टार्टअप्स है, ये वो स्टार्टअप है जो रूरल जो टैलेंट है ना, उसको सही तरीके से एक्सप्लॉइट करना। आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सप्लॉइट, ये पॉजिटिव में यूज होता है। ठीक है, तो सम वन स्टार्टअप इज चिकित्सक, हेल्थ अगर बेहतर हो जाएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एचपीएस इज देयर। ठीक है, जीव अंश है, उसके बाद आपका गाथा है,
which happens to be a very solid formula of making good money. And now Rozgar Dhaba and all. तो इसी तरह से और भी जो स्टार्टअप्स है इसका कलेक्शन कीजिए और प्रेजेंटेशन, पहले तो इन पांचों को कवर करना है हम लोगों को, ठीक है? प्रतीक क्लियर है? यस सर। प्रतीक, हाँ, that is now your topic is SPS. SPS कैसे शुरू हुआ, कौन लोग हैं फाउंडर एंड ऑल, मतलब पूरा स्टोरी एंड ऑल, और कितना फायदा हुआ है उसका डेटा चाहिए, ठीक है? That's your presentation will fill with that. Clear? ओके सर। ओके सर। Okay, ठीक है. Now anybody else? Abhiraj? Abhiraj? Hello Abhiraj? Okay. अक्षय, अनम्यूट तो करो। तुम जरा गाथा को कवर करो। यस सर। गाथा क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है यार अनम्यूट करने में? समथिंग वेरी चैलेंजिंग यार, आई थिंक। सर आवाज नहीं आ रहा हुआ सर। गाथा को कवर करोगे तुम, ठीक है? गाथा को कवर कीजिएगा एंड एट द सेम टाइम कि कुछ स्टोरी भी उसमें रहे कि किन की जिंदगी बेहतर हुई उस स्टार्टअप से, ठीक है? तोशी, you also select one among that 5, ठीक है? Okay, Yes. thank you, thank you.